Good morning, student. Now we continue our lecture. Exercise 12.2. First sum is we have find the distance between the following pair of points. First question, second part, that is there are 2 points -3, 7, 2 and 2, 4, -1. We want to find out the distance between them. That is find the value of AB. You know the formula between these 2 points. If these are x1, y1 and z1 and it's be x2, y2 and z2, then formula will be under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Put it there. That is 2 minus 3 complete whole square plus 4 minus 7 complete whole square plus -1 minus 2 complete whole square. We have 2 minus 3, that is 2 plus 3 5 square plus 4 minus 7 minus 3 whole square, that is 9 or minus 3 whole square plus -1 minus 2 minus 3 whole square. You got 25 plus 9 plus 9, that is 25 plus 9, 25 plus 9, 34 plus 9, 43, under root of 43. गुड बेटा इन सेम मैनर यदि हम सेकंड क्वेश्चन करें, दैट इज वी हैव 3 पॉइंट्स सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हमने क्या किया, पुट दीज पॉइंट्स दिस दिस एंड दैट. फर्स्टली फाइंड ए बी. We have 1 minus minus 2, that is 1 plus 2 whole square plus same formula beta 2 minus 3 minus 1 2 minus 3 minus 1 का whole square plus 3 minus 5 minus 2 का whole square, that is under root of 9 plus 1 plus 4 under root of 14. Find BC. In same manner, applying same formula, 7 minus 1, 6 whole square plus 0 minus 2, minus 2 whole square plus -1 minus 3, minus 4 whole square. That is 36 plus 4 plus 16. 40 plus 16, 56. 56 can be written as 2 under root 14. क्योंकि बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है अंडर रूट 56 को, सर अंडर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई 4. 4 इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. दो 2 1 2 exit and this. Now get it AC in same manner. If we get AC in same manner, you got 7 minus minus 2, that is 9. 7 plus 2, 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 3 whole square plus -1 minus 5, that is minus 6 whole square. You got 9 square 81 plus minus 3 square 9 plus 6 square, that is 36. 81 plus 9, 90 plus 36, 126. That is under root. इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, 3 root 14. 3 root 14. सर कैसे, सेम मैनर, दैट इज 14 मल्टीप्लाई 9 और इसको क्या लिखा जा सकता है 14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 1 3 एग्जिट. अब देखिए बेटा आप शो कर सकते हैं सिंस ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी, दैट इज ए बी अंडर रूट 14 plus BC 2 under root 14
इज इक्वल टू AC 3√14। यदि बेटा दो का सम तीसरे के इक्वल आता है देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप कहेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव verify this, the vertices are the vertices of an isosceles triangle, these are the vertices of a right angle triangle, these are the vertices of a parallelogram। देखिए बेटा हम एक पार्ट करेंगे, बाकी आप करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। वी हैव 3 वर्टिसेस, बेटा आप कोई भी 3 वर्टिसेस मान लीजिए। द पॉइंट्स आर 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9 and -6। Consider it as A, its B and its C। देखिए बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोसेलेस? यू नो सर, whose two sides are equal? The triangle whose two sides are equal, two sides are equal। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालिए। व्हाट इज ए बी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 7 -1 होल स्क्वायर दैट इज +1 प्लस -6 -10 दैट इज -6 प्लस 10, 4 का स्क्वायर 16। You got AB is equal to under root of 16 plus 1 17 plus 1 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 under root 2, 3 under root 2। Now find AC। AC under root of in same manner बेटा 4 minus 0, 4 minus 0 4 का स्क्वायर that is 16 plus 9 minus 7 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 minus 10 that is -6 plus 10 again 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके, 16 plus 16 32 plus 4 36 under root of 36, it's be 6 बेटा। find BC, find BC। 4 minus 1 3 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 minus 6 अगेन 3, 3 का स्क्वायर दैट इज अगेन 9 प्लस -6 minus -6 दैट इज -6 प्लस 6 0, 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट ऑफ 18 3√2। सिंस बेटा टू साइड्स आर इक्वल, सिंस टू साइड्स आर इक्वल देन यू से सर दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC। दो साइड इक्वल हुई बेटा, AB इज इक्वल टू BC, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल जो ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन सेम मैनर यू डू द, सर इसमें क्या होगा? राइट एंगल, राइट एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा? राइट एंगल के लिए क्या कंडीशन होगी? इफ वी हैव दीज पॉइंट्स एज 0 7 10 -1 6 6 and -4 9 6, what will be the condition? Simple beta, you know in right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करेंगे जब ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो जो सबसे बड़ी लाइन है वी डोंट नो विच इज द बिगर वन, जो सबसे बड़ी लाइन है उसका स्क्वायर बाकी दो के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा, बाकी दो के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन सेम मैनर यदि थर्ड पार्ट करें पैरेललोग्राम, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेललोग्राम?
व्हाट्स द कंडीशन फॉर द पैरेललोग्राम? सर आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी। तो आप जब इन पॉइंट्सों को पुट अप करेंगे, -1 2 1 1 -2 5 4 -7 8 एंड 2 -3 4। तो सिंपली बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ये डिस्टेंस यू गॉट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, यू गॉट दैट। आप देखेंगे दो डिस्टेंस इक्वल होंगे बेटा। यदि दो डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल या वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए ये भी हमने 10th में किया है। He is asking find the set of point, sorry, find the set of point which is equidistant from the point this and this। हमारे पास बेटा दो पॉइंट है 1 2 and 3 and the other one is 3 2 -1। we want to find the equation of a line, equation निकालनी है बेटा which are equidistant from these two line, which are equidistant from these two line। तो हमने क्या किया बेटा, let the point be, let point P be x y z। ये पॉइंट क्या मान लिया बेटा, x y और z। हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है सच दैट दीज टू डिस्टेंस आर इक्वल। ये दो डिस्टेंस दैट इज पी क्यू एंड पी आर इक्वल, पी क्यू इजकल टू पी आर। तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, यू गोट दिस इम्प्लाइज बेटा पी क्यू का स्केयर क्या होगा, पी क्यू का स्केयर क्या होगा सर, पी आर के स्केयर के इक्वल। तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट, यू गोट एक्स -1 का स्केयर प्लस वाई -2 का स्केयर प्लस जेड -3 का होल स्केयर इजकल टू पी आर स्केयर, एक्स -3 का होल स्केयर प्लस वाई -2 का होल स्केयर प्लस जेड -1 जेड +1 का होल स्केयर, एक्स -3 का होल स्केयर प्लस वाई -2 का होल स्केयर प्लस जेड -1 जेड +1 का होल स्केयर। राइट द फॉर्मूला ए -b का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab 6z, अगेन ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो बेटा एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल आउट एंड जेड स्केयर से जेड स्केयर कैंसिल आउट। हेयर इज 9 to 9 कैंसिल आउट, एक्चुअली ये 9 उस साइड जाके -9 9 -9 0। पुट ऑल द टर्म्स एक्स वाई जेड on one side and all the constant term on one side, you get the equation। okay, got the equation।